पंजाब पुलिस ने जिहड़े वलटोहा पिंड दे फॉर्मर सरपंच जरमाल सिंह दे मर्डर नूं सॉल्व कर लिया है ते इस दे विच 7 गिरफ्तारियां हुईआं। 2 गिरफ्तारियां जिहड़ियां रायपुर छत्तीसगढ़ तो कल हुईआं, 2 गिरफ्तारियां मोहाली दे विच ते 3 गिरफ्तारियां तरन तारण तो अज सवेरे हुईआं। सो इहदे विच जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन तो पता लग्या सी इसनूं काफ़ी टैक्नीकल लीड्स इस दी फॉलो की गई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਡਿਊਲਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈਂਡਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਪੋਰਟ, ਵੈਪਨਸ, ਵਹੀਕਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਡਿਊਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਡਿਊਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, AGTF ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ एक CCTV ट्रेल ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਪੁਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੇਲੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਦਿੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕ ਬੇਸਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਅਕਿਊਜ਼ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੰਗਾ, RO ਥੱਕੜਪੁਰਾ ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਅਕਿਊਜ਼ ਇਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, RO ਵਿਲੇਜ ਪਾਸਨਵਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਐਸੇਲੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 14 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈ 에ਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮੋਡਿਊਲ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਵੈਪਨਸ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋਬਨਜੀਤ ਹੈਗੇ। ਜੋਬਨਜੀਤ RO ਵਿਲੇਜ ਭਾਈ ਲਾਡੂ, PS ਖਬਰਪੱਟੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਬਨਜੀਤ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਲਸੀਆਂ ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ, PS ਲਖੀਵਿੰਡ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ SSOC ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੀਡਸ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋ ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ CCTV ਟ੍ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ CCTV ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਿੰਦਾ, ਅਰਮਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ पंजाब पुलिस ने पीछे जो वलटोहा विलेज के एक्स सरपंच जरमल सिंह के मर्डर को सॉल्व कर लिया है और इसमें 7 गिरफ्तारियां करी हैं। जो मेन अक्यूज थे, जो असेलेंट्स थे, उनको छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ, सेंट्रल एजेंसीज के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में उन्हें रायपुर छत्तीसगढ़ से अरेस्ट किया गया। उसके साथ सपोर्ट और लॉजिस्टिकल मॉड्यूल में जोबनजीत सिंह, 2 शख्स थे जिनके दोनों के नाम जोबनजीत सिंह थे, उन्हें SSOC मोहाली की टीम ने, काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने उन्हें अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन की लीड्स को आगे बढ़ाते हुए आज सुबह तरनतारन ने पुलिस ने कुलविंदर सिंह उर्फ किंदा, RO विलेज कलसिया कला, अरमानदीप सिंह और हरप्रीत सिंह, ये 3 लोग जो CCTV ट्रेल के फॉलोअप में फिगर हुए थे, जिन्होंने शेल्टर प्रोवाइड किया था, इन्हें अरेस्ट किया गया है। तो इस इन्वेस्टिगेशन में साइंटिफिक तरीके से टेक्निकल एविडेंस को फॉलो करते हुए तो जो असेलेंट्स की जो ट्रेल थी वो डिफरेंट स्टेट्स के थ्रू पास हुई और इसमें पुलिस पार्टियां, पंजाब की पुलिस पार्टियां बिहार में, पटना में गईं, नांदेड़ में गईं। उसके बाद असेलेंट्स को ट्रैक किया गया रायपुर छत्तीसगढ़ में और लोकल पुलिस की मदद से, सेंट्रल एजेंसीज की मदद से इन्हें लोकेट किया गया और इन्हें कल रायपुर में गिरफ्तार करके जो ये 2 असेलेंट्स थे, सुखराज और करमजीत, तो इन्हें लोकल कोर्ट में पेश करके इनका 14 तारीख तक ट्रांजिट रिमांड लेके इन्हें बाई एयर पंजाब ले आया जा रहा है। और जो 2 सपोर्ट मॉड्यूल के जो 2 जोबनजीत थे, इन्हें मोहाली SSOC ने गिरफ्तार किया है
और आज सुबह जैसा कि मैंने बताया कि 3 अक्यूज्ड ये तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में ये गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने शेल्टर प्रोवाइड किया था। तो ये सारा जो मर्डर था इसको बाहर बैठे हुए ऑपरेटिव्स ने अंजाम दिया। डिफरेंट मॉड्यूल्स थे, असेलेंट मॉड्यूल अलग था, सपोर्ट मॉड्यूल अलग था, लॉजिस्टिकल मॉड्यूल अलग था और इसको डिफरेंट लोग अंजाम देते थे। फंडिंग भी इनकी वाइल देवर ऑन द रन उस वक्त भी फंडिंग करी गई, वेपन्स प्रोवाइड किए गए, व्हीकल्स प्रोवाइड किए गए। तो एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल ऑपरेशन था जो पंजाब पुलिस ने जो अनरेवल किया और इस केस को सक्सेसफुली इस केस को वर्कआउट किया। तो मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी सरदार भगवंत मान की टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। तो जिस तरह से युद्ध नशे विरुद्ध पे कैंपेन लॉन्च हुआ है तो पंजाब सरकार ने बहुत जल्द अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ कैंपेन लॉन्च होगा जिसमें फोकस ये होगा कि जो ये लोग बाहर बैठे हैं उन्हें बाहर से लीगल मेथड से उनको लेके आया जाएगा, एक्स्ट्राडिशन या उनकी डिपोर्टेशन कराई जाएगी। जो लोग यहाँ पे बैठे हैं इस क्राइम को हम एक एंड टू एंड मैनर में जो पूरा इकोसिस्टम है क्राइम का उसे आइडेंटिफाई करके उसे बस्ट किया जाएगा। कोई भी इस क्रिमिनल एंटरप्राइज में जो इन्वॉल्व है उसे बख्शा नहीं जाएगा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंतर्गत। और साथ ही साथ में मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर पंजाब में कोई क्राइम करेगा, गोली चलाएगा, तो पंजाब पुलिस उसका पीछा देश के कोने कोने में जो लोग भारत से बाहर भी बैठे हैं उन्हें भी जो दे विल हैव टू अकाउंट फॉर देयर क्राइम्स एंड द लीगल लॉ विल कैच अप विद देम। सो पंजाब पुलिस इज फुली डिटरमाइंड टू वाइप दिस मेनेस ऑफ पंजाब। एक हाले इन्वेस्टिगेशन चल रही है पर जिवें एक ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾਸੂਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ रंजिश ਸੀਗੀ। सो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ सामने सवाल ये उठता है कि अमृतसर से रायपुर तक चलेंगे कोई ना कोई स्टेट रूट रहा होगा क्योंकि इससे पहले भी कई सारे ऐसे क्राइम हुए जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए, चाहे आप मोहाली मर्डर केस के लिए उसमें भी छूटे अभी तक पकड़े नहीं गए। तो कोई ऐसे स्पेसिफिक स्टेट रूट है जो पंजाब से आसानी से मर्डर करने के बाद अभी दूसरे स्टेट में चले जा रहे हैं, वहां शेल्टर ले रहे हैं अभी अपराधी? ये ट्रेंड हमने देखा है। ये आपकी बात सही है कि जो इंटर स्टेट जो क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं उसकी वजह से दूसरे स्टेट्स में इन्हें शेल्टर मिल जाता है और ये मतलब ये कह लें ये इस चीज़ का फायदा उठाते हैं। पर इसको काउंटर करने के लिए हमने बड़े इफेक्टिव तरीके से दूसरी स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन किया है। और उस केस में भी मैं बताना चाहूँगा कि मतलब नहीं तो अगर आपको दोबारा चाय पिलाने का मौका नहीं मिलेगा तो बहुत जल्द जो मोहाली मर्डर केस है वो भी हम क्रैक कर देंगे। हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज मिले हैं तो हमारा कोई भी केस अनसॉल्व नहीं है। अगर आप देखेंगे पिछले साल जो भी हमारे क्राइम्स हुए हैं हमने 100% सारे केसेस सॉल्व किए। सच्चाई है लगातार पोस्ट जो कोई भी क्राइम होता है तो उसके बाद पोस्ट आ जाती है, कितनी सही है या फेक डालते हैं, मतलब उसमें क्या सच्चाई है? देखिए कई बार सही भी होती है, कई बार एग्जैजरेटेड होती है, कई बार एब्सोल्युटली फेक होती है। जैसे स्पेशली जो हमने जो ग्रेनेड वाले मसलों में देखा है कि इंसिडेंट नहीं होता है तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। अब जैसे 4-5 लोग क्लेम कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन में फिर पता लगता है कि सभी का रोल नहीं है, कुछ लोगों का रोल होता है, कुछ का नहीं रोल होता है, तो वो एज अ ग्रुप क्लेम करते हैं। तो इसकी कोई बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी नहीं है जो सोशल मीडिया के क्लेम्स होती है। There's a breach of privilege on you. आपको उसके ऊपर क्या कहना है? स्पेशली जो एआई के ऊपर आप सुनील जाखड़ ने भी कहा है कि सीएम का भी एक वीडियो है, उसका कोई ऑथेंटिफिकेशन हुआ है। तीसरा सवाल है जो आप लोगों ने एक एफआईआर किया है जिसमें सुखपाल खेड़ा, सुखबीर बादल और बाकी लोगों को नेम किया है, क्या बेसिस है उसका और क्या आप ऑथेंटिकेशन शेयर करेंगे जो आपके एसएएस मोहाली में आप लोगों ने किया था उसके ऊपर? Ma'am, I cannot comment on ongoing matters, so I will not offer any comments in the matter. डीजीपी साहब ने सर इतना बता दी, जैसे सुनील जाखड़ ने ट्वीट किया है जो वीडियो की फोरेंसिक जांच हो, इस पे आपको एक चिट्ठी लिखी है, शिकायत दी है, उस पे क्या कहना है? नहीं, मुझे अभी तक कोई चिट्ठी नहीं मिली। अगर चिट्ठी आएगी तो उसको मैं जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारे यहाँ वर्क एज पर लॉ क्लियरली कट आउट है तो डीजीपी का मेन रोल पॉलिसी मेकिंग में होता है। जैसे क्राइम की कह लें डे टू डे, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट करी अपने कमिश्नर साहब को, इन्हें अमृतसर से बुलाया कि अगर सप्लीमेंट्रीज हैं, आपने कोई डिटेल्स पूछने हैं, सो कंसर्न हमारे जो एसएसपी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं,
तो एक उनका जो वर्क एरिया, क्योंकि सभी चीज़ें मेरे संज्ञान में भी नहीं होती हैं, और सभी इस लेवल के स्टेट लेवल पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही उस पर डिसीजन लिया जाता है। सर, अपोजिशन एलिगेशन लगाता है कि पंजाब पुलिस पॉलिटिकल उसमें काम करती है। जैसे एक वीडियो का मामला है कपिल मिश्रा की, तो एकदम से फॉरेंसिक जो है एग्जामिनेशन हो गई, तो पटियाला वाला इशू आया, उसमें फॉरेंसिक एग्जामिनेशन नहीं हुई, तो अपोजिशन बोल रहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। नहीं, पंजाब पुलिस बिल्कुल फेयरली मेरिट बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस करती है, तो इससे ज्यादा मैं इस विषय पे नहीं बोलना चाहूँगा। सर, एक दो लेटर्स वायरल हो रहे हैं विक्रम मोदी के थ्रेट इश्यूज को लेके, उसके ऊपर कोई कितना जा रहा है सर? Again, I'll offer no comments on security matters. It will be not appropriate to comment. बट सर, आप लोगों ने एफआईआर किया है तो थोड़ा पब्लिक डोमेन में तो वो बात आनी चाहिए कि किस बुनियाद पे किया गया। इज इट बेयरली बेसिकली ऑन ट्वीट ऑफ कपिल मिश्रा, और क्योंकि इस तरह के जहाँ पे हम आईटी एक्ट की बात करते हैं वहाँ पे क्या, क्योंकि बहुत सारे ट्वीट्स होते हैं, रीट्वीट्स होते हैं। नहीं मैम, I would have loved to reply to this, but since the matter has been taken cognizance of by Delhi Vidhan Sabha, so it would not be appropriate to say anything. Will you appear before them? I cannot say anything on the matter. आपको नोटिस मिला है सर वहाँ पे दिल्ली विधानसभा में? I cannot comment on this issue. Sir, regarding this Sarpanch's murder, to come back to the main issue, the thing has been solved, as we say. But there are some lapses which took place. I believe he was protected. I believe he had some personnel assigned to him. There were some other protectees also present there whose protection parties were present outside the venue, perhaps. And despite that, these people walked in, killed him, and walked away. Don't you feel that there is some lapse over there? I agree with you. You see, I would rather amplify what Mr. China is saying. Yes, once we speak about, in my last press conference, I had said that I had given figures and said that the crime has not increased much in Punjab as murders have gone down. But at the same time, I would agree that jade strategic crimes or high impact crimes. So this crime was a high impact crime, and I fully agree that lapses, if any, would be looked into and punished. And you are correct that security personnel were assigned. So we are looking into this, and appropriate responsibility will be fixed. सर, ये जो दिन दिहाड़े हत्याएं हो रही हैं, अनमास्क हैं, कोई फेयर ऑफ पुलिस नहीं नजर आ रहा है, क्या कारण है इसका? और ये जो गैंग्स हैं, पहले यूपी में जैसे बहुत सक्रिय होते थे, अब पंजाब हरियाणा की तरफ आपको लगता है क्यों स्ट्रैटेजिकली मूव किए हैं? देखिए, मैं समझता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा था कि मे बी हम जागरूक हैं, हमारी मीडिया एक्टिव है, तत्पर है, अदरवाइज हमारे जो मर्डर्स हैं वो 745 से कम होके 680 हुए हैं इस साल। और मर्डर्स हैं वो ना छुपाए जाते हैं, ना वो वर्क किए जाते हैं। हमने सभी मर्डर्स वर्कआउट किए हैं, हाई प्रोफाइल मर्डर्स वर्कआउट किए हैं। जो हमारी क्राइम रेट है वो 227 पर लाख ऑफ पॉपुलेशन है, जो ऑल इंडिया 450 है। तो हमारी क्राइम रेट भी कम है। हमने केसेस सारे वर्कआउट किए हैं। केसेस हम हाई प्रोफाइल मर्डर की हम इंपॉर्टेंस समझते हैं, इसीलिए हम सभी आपके सामने बैठे हैं कि ये समझा गया कि ये मर्डर सॉल्व किया गया है, तो इसके बारे में शेयर किया जाए मीडिया के साथ कि इसको कैसे प्रोफेशनली अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके ये केस सॉल्व किया गया। इससे ये नहीं कहते कि पुलिस फोर्सेस ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟਸ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1600 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਮਿਡਲ ਰੈਂਕਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ 3400 ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਾਨ ਕੋਰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੌਂਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗੇਨ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਰਵਰਸ VPNs ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਟ ਇਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਈਮੇਲਸ ਦੇ ਓਰੀਜਿਨੇਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲਸ ਆਈਆਂ and we have not been able to solve it so far. मर्डर केस में सर ये नोट्स एक साथ कैसे कनेक्ट हुए हैं, किसका क्या रोल था, थोड़ा सा अगर ब्रीफली कुछ कहानी बता पाए आप? बेसिकली मतलब प्रभ दासूवाल was the main mastermind. मोटिव जिवें तुसीं पुछिਆ ਸੀਗਾ, मोटिव was personal enmity. So प्रभ दासूवाल आप भी गल करदा सी, people on his behalf जिवें ਉਹ ਫਿਰ डिफरेंट मॉड्यूल्स नाल डिफरेंट लोग आपस 'ਚ इन टच रहंदे सी, ਜਿਹੜੇ फॉरेन बेस्ड ਜਿਹੜੇ ऑपरेटिव ਸੀਗੇ।
ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਔਨ ਅ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਬੇਸਿਸ। ਜੀ ਬਲੀ ਸਰ। जनरल क्वेश्चन can you please complete that? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ कंप्लीट करने दीजिए। नहीं मैम ऑलमोस्ट हो गया। मॉड्यूल एक दूसरे से कौन शूटर था, कैसे एक दूसरे का था, जैसे So I think CP Amritsar will have a tough time facing the Amritsar press. So they are saying that Chandigarh is privileged. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪੀਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। So I think he will go and share some more details, ma'am. Yes. ਇਸ ਵਾਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੈਪਨਸ ਰੋਜ਼ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਡਰੱਗ ਵੀ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। नहीं मैं नहीं बली साहब मैं सहमत हाँ। देखो जिवें मैं पहले भी किया सीगा कि ये एक तरीके दी प्रॉक्सी वॉर है। जिवें हुण इस साल ऑप सिंदूर तो बाद हुण साडी जिहड़ी सीजर ऑफ स्मॉल आर्म्स हैज गॉन अप 5 टाइम्स। सो दैट इज द चैलेंज वी आर अप अगेंस्ट एंड वी आर एंड विद द सपोर्ट ऑफ सेंट्रल एजेंसी सानू लोकां दी बहुत सपोर्ट मिल रही है। इन्फॉर्मेशन इस केस नू क्रैक करन दे विच वी गॉट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक आल्सो। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਰਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵੇਲੇ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਛਾਪਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲੀਡ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਪਦੀ ਹੈ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਏਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਮਾਰਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਰਰ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਹੈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ? देखो जी एक ओवरऑल मैं समझदा कि बिल्कुल सही गल तुसीं कही है कि वो चाहुंदे आही है। एक बारी मैनूं याद है असीं एक्सपेरिमेंट कीता सी प्रेस कॉन्फ्रेंस असीं ना ही नहीं लाए। इनफैक्ट मेरी कोशिश होंदी मैं ना नहीं लैंदा, मैं गैंगस्टर वर्ड नहीं यूज़ करता, मैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वर्ड यूज़ करता, मैं शूटर वर्ड नहीं यूज़ करता, असेलेंट कहना। सो आइडिया है कि असीं वी शुड नॉट ग्लोरी। बाकी मीडिया इज एन एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट, बट जे मैं समझदा इस तरह की चीज़ों को इनकरेज ना किया जाए तो वो बेटर है जी। अच्छा दूजी इट इज़ नॉट जस्ट मीडिया, ईवन सोशल मीडिया ते बहुत ज़्यादा होंदा है। सोशल मीडिया ते इन्हां दी रिक्रूटमेंट भी हो जाती है। सो उस ते भी असी काफ़ी स्ट्रोंग क्रैकडाउन किया है। मतलब जी जिवें मैं जीरो टॉलरेंस जिवें सीएम साहब की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का जिक्र किया है, तो दैट एक्सटेंड्स टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ते कोई पोस्ट पाऊगा, कोई ग्लोरीफिकेशन, कोई सॉन्ग है इस तरह का, क्योंकि कई इंडस्ट्रीज जिहड़ियां इस तो ज़्यादा इफेक्टेड है क्राइम तो असी उन्होंने महफूज करन दे उपराले कर रहे हैगे। सो आइडिया इज असी देखिया 80% जी कॉलां होंदियां वो फेक लोकल क्रिमिनल करते हैं। सो मैं लोगों को दोबारा अपील करांगा कि तुसी खुल के दसो, पुलिस को लाओ। सो द ओनली वे इज टू टेक दिस हैड ऑन टू बस्ट देम। जिहड़ा बंदा इस तरह का क्राइम करता है उसनूं पता होवे कि मैं बच नहीं सकता, मैं किते भी भज के जावांगा, पंजाब पुलिस साडे मगर जाऊगी, सानू फड़ के लाऊगी। दिस इज द मैसेज वी वांट टू गिव। लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शायद ये सवाल आया था कि जिस तरीके से कबड्डी प्लेयर्स की हत्या की गई, 2 कबड्डी प्लेयर्स हो चुके हैं, तो क्या कबड्डी प्लेयर्स का भी कोई जो ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ कोई रिलेशन होता है? क्योंकि जिस तरीके से उनको टारगेट किया गया, टारगेट किलिंग की गई, तो उनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं? जैसे मैंने कहा म्यूजिक इंडस्ट्री है, कबड्डी में क्योंकि काफ़ी इसमें क्राइम की पेनिट्रेशन है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं, तो इस वजह से वनरेबिलिटी ज़्यादा है। तो मैं तो ये कहूँगा हम विशेष ध्यान देके हम कबड्डी को हम प्रोटेक्शन देंगे ताकि लोग जो ये पंजाब का ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है तो ये अपनी ग्लोरी जो है इसकी जो प्रिस्टाइन ग्लोरी है वो रेस्टोर हो सके। थैंक यू जी। वी हैव अरेंज्ड अ कप ऑफ टी।